ناظرین اکرام السلام علیکم۔ ہماری خاص پیشکش راہ نجات میں آپ کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے۔ میں ہوں اطہر سعید، آپ کا میزبان آپ کے ساتھ، اور ناظرین آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے اور ہمارے آج کے موضوع پر ہماری تفصیلی رہنمائی فرمانے کے لیے مولانا عبداللہ طارق صاحب ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں رونق افروز ہیں۔ معروف عالم، مفکر اور دانشور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ہم اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور ان کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ حضرات، راہ نجات میں ہمارا آج کا موضوع ہے تعلیم و تربیت۔ حضرات، تعلیم ہمیں باصلاحیت بناتی ہے، ہنرمند بناتی ہے، دنیا اور آخرت کو دیکھنے سمجھنے کی قوت اور صلاحیت ہمارے اندر پیدا کرتی ہے۔ وہیں تربیت کی اگر بات کریں تو تربیت ہمیں بہتر انسان بناتی ہے، ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے، انسانیت کا جذبہ پیدا کرتی ہے، سلیقہ مند ہمیں بناتی ہے، با تہذیب بناتی ہے، با ادب بناتی ہے۔ آج حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا تعلیمی معیار آگے بڑھ رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اخلاقی طور پر ہم گراوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ حالانکہ اسلام کی اگر بات کریں تو اسلام نے تعلیم اور تربیت دونوں پر یکساں زور دیا ہے اور دونوں کی اہمیت سے بھی ہمیں روشناس کرایا ہے۔ تو آج اپنی بات کا آغاز مولانا صاحب سے اس موضوع کے تعلق سے یہاں سے کرنا چاہتے ہیں کہ مولانا صاحب، تعلیم اور تربیت یہ دو الفاظ ہیں، ان دونوں کی اہمیت ہم جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حضرات، تعلیم نام ہے اس چیز کا کہ ہم اچھے برے کو بچوں کو سمجھا دیں، بتا دیں یہ چیز اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ذریعے انسان کو سوجھ بوجھ واقفیت حاصل ہو جائے۔ بے شک۔ لیکن تربیت نام ہے اس چیز کا، جو کچھ ہم نے اسے دیا ہے وہ اس نے قبول بھی کیا یا نہیں، اس کے اثرات اس کی زندگی پر آئے یا نہیں، اس کے اندر انسانی اوصاف و کمالات آئے یا نہیں۔ اس لیے کہ کسی بات کا معلوم ہو جانا، بتا دینا کافی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں صرف اس بات کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ بے شک، اچھے اخلاق کی تکمیل کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق پہلے سے موجود ہیں، تکمیل تو اس چیز کی جائے گی جو ہے تو موجود، اس کو بروکار لانا ہے، نامکمل ہے بھی وہ۔ جی جی جی۔ تو جو اخلاق موجود ہیں، قدیم انبیاء کرام کی تعلیمات بھی دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ جہاں اسلام کا نام بھی نہیں ہے وہاں بھی پرانے زمانے سے جو اچھی چیزیں چلی آ رہی ہیں، پرانے انبیاء کرام کے ذریعے، پرانے سمجھدار لوگوں کے ذریعے جو اچھی باتیں، اچھے اخلاق چلے آ رہے ہیں وہ موجود ہیں، لیکن وہ چیزیں نامکمل تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں، اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے لوگ تھے وہ جنگ و جدل، مارنا کاٹنا، شراب پینا، زنا، چوری، نہ صرف یہ کہ وہ ان باتوں سے بچتے نہیں تھے بلکہ ان باتوں پر فخر کرتے تھے۔ میں اتنی شراب پیتا ہوں، میرے پیچھے اتنی لڑکیاں پھرتی ہیں، اور آپ پرانے عرب کے اشعار پڑھیں گے تو وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میرے پیچھے تو حاملہ عورتیں بھی بے چین رہتی ہیں۔ یہ سب کہہ کر وہ یہ جتانا چاہتے تھے کہ میرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اخلاق دیے انسانوں کو، وہ شراب سے نفرت ہو گئی ان کو، حتیٰ کہ فرزدق کے جو دادا تھے، سعصع نام تھا ان کا، جب وہ اسلام لائے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ کے رسول میں اتنے زمانے سے شراب چھوڑے ہوئے ہوں، اور وہ ایک بہت عجیب خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ اپنے پاس سے اونٹ دے دے کر، اور جو لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی ختم کر دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، وہ جا کے ان کی بیٹیاں لے لیا کرتے تھے اور ان کو اونٹ دیتے تھے، جتنے بھی سودا طے ہو جائے، 2 اونٹ 4 اونٹ 5 اونٹ دے کر، اور وہ بچیاں لے لیا کرتے تھے، ان کی پرورش کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ جو کام میں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے اس بات کا اجر ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عظیم اجر تو اس بات کا یہ ملا ہے کہ تمہیں اسلام کی توفیق ملی۔ سبحان اللہ۔ تو اسلام جو ہے وہ خوبیاں انسانوں میں پہلے سے موجود تھیں، ان کو بڑھانے کا کام کرتا ہے۔ حاتم طائی کا بیٹا، عدی بن حاتم نام ہے ان کا، حاتم طائی ساری دنیا میں مشہور ہے، لیکن ان کا بیٹا جو تھا اس نے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی پھوپھی کو بتایا، حاتم طائی کی بہن کو بتایا کہ
پھوپھی میں نے ایک ایسا آدمی پایا ہے جو تمہارے بھائی سے بھی زیادہ کریم ہے۔ سبحان اللہ جی۔ ان کو اس سے زیادہ کریم کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرائی اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو سخاوت کرنا اچھی بات ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اور بڑھاوا دیا، بے شک، اور پھر فضول خرچی اور سخاوت میں فرق بتایا، اپنے اور بیگانے کا فرق سمجھایا، بیگانوں کے ساتھ بھی ہمدردی کرنے کی تعلیم دی۔ یہ ساری باتیں سکھانے کا نام جو ہے تربیت ہے۔ بے شک، تعلیم حاصل کر کے آدمی اگر تربیت نہ ہو تو پھر وہ ایک پڑھا لکھا جاہل کہلاتا ہے۔ بے شک عمار صاحب، اسلام نے تعلیم اور تربیت دونوں پر یکساں زور دیا ہے، لیکن ہم دور حاضر میں دیکھیں تو آج ہم ان دونوں چیزوں سے دور ہیں، نہ تو تعلیم ہمارے پاس ہے، نہ تربیت بہتر ہو رہی ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اصل چیز جو ہے وہ مستقبل کو نہ سوچنا بہت بڑی بیماری ہے۔ جی جی۔ آنے والے وقت سے غافل رہنا۔ ایک آدمی کو معلوم ہے کہ اب یہ فلاں موسم چل رہا ہے، جی، اس کے بعد برسات کا موسم آنا ہے اور ہماری چھت کمزور ہو رہی ہے، تو بارشیں شروع ہو جائیں اور چھت ٹپکنے لگے، اس کے بعد ہی جو آدمی فکر کرے گا وہ نادان ہے۔ اس سے پہلے مرمت کا کام، اس سے پہلے مرمت کرنے کی ضرورت ہے۔ جی جی۔ تو وقت سے پہلے سمجھنا۔ بچے جوان ہو کے اور ادھر ادھر خدا نہ خواستہ بھٹکنے لگے، اب ماں باپ کو فکر ہوئی ہے کہ ان کی شادی کرنی چاہیے، یہ نادان ماں باپ ہیں۔ ان کو اس سے پہلے سمجھنا چاہیے، ہر کام کو اس کے وقت سے پہلے سمجھنا، یہ سمجھداری کی چیز ہے۔ تربیت اس چیز کا نام ہے کہ جس وقت میں جو کچھ، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں بتایا، چھوٹے بچے ہیں تو ان کے بارے میں کل ہم بات کر چکے ہیں، اور ذرا بڑے ہوئے تو ان کو اب اخلاقیات سکھانی ہے، جی جی، اور نماز سکھانی ہے۔ نماز کے علاوہ لوگوں کے، انسانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، اپنا ہو بیگانہ ہو ہر ایک کے ساتھ، اور اپنا ہو تو اس کے ساتھ زیادہ، دوسرا ہے تو اس لیے کہ دوسرے کی فکر کرنے والے دوسرے بھی موجود ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تربیت مولانا صاحب دنیا کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے، اور ہم دنیا کو اگر بہتر طریقے سے ہم نے سوچ لیا تو ہماری آخرت اپنے آپ اچھی ہو جائے گی، تو تربیت کا ساتھ میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن آج کے دور کی ہم بات کریں تو آج ہم دونوں ہی نہ تربیت ہے۔ مولانا صاحب اس طرف دھیان لے جانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے اپنا تعلیمی معیار ہمیں بہتر کرنا ہے، کس طرح سے بہتر اخلاق ہمیں سیکھنے ہیں۔ حالانکہ اخلاق کی پابندی ہماری زیادہ تر ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ نوجوان طبقے سے خاص طور پر بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تربیت پر بھی ان کے والدین کو زور دینا چاہیے۔ جی بالکل، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں ایک اعتماد بنتا ہے۔ جی جی۔ جب چھوٹا بڑے کا احترام کرے گا تو بڑے کے اندر بھی اس کے لیے شفقت اور ہمدردی پیدا ہوگی، اور دل کے گہرائیوں سے وہ اس کے خیر خواہی کرے گا، اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طرح سے ہاتھ سے ہاتھ دھلتا ہے۔ جی، یہ ہاتھ اسے دھوتا ہے، یہ ہاتھ اسے دھوتا ہے۔ بڑے چھوٹوں کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ جب احترام اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں تو باہمی تعاون بڑھتا ہے اور ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی اولاد، اپنے بچوں، اپنے چھوٹوں اور اپنے تعلق والوں کو دونوں باتیں کی تاکید کریں۔ تعلیم بھی حاصل کریں جس کے ذریعے مادی ترقی حاصل ہوگی، دولت میں اضافہ ہوگا، سہولتیں ملیں گی، خوشحالی حاصل ہوگی، رہن سہن کا معیار بلند ہوگا، اور اسی کے ساتھ ساتھ تربیت اخلاق کی، اچھی باتیں بتانا، سلام کرنا، بڑے چھوٹے کا احترام بتانا۔ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ پڑوس کا بچہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو پڑوس کا بوڑھا جو ہے اسے ڈانٹتا تھا، اور ان کے گھر والے جب دیکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ چچا میاں آپ نے اچھا کیا، ضرور سمجھائیے۔ ایک ذمہ داری ہوتی تھی۔ آج یہ چیز ہم لوگ غافل ہو گئے ہیں۔ آپ اگر کسی پڑوس کے بچے کو ڈانٹ دیں گے تو ان کے ماں باپ لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ کوئی آدمی کسی کو دیکھتا نہیں ہے، کوئی جو کچھ کر رہا ہے کرے، ہم سے کیا مطلب، ہم انہیں سمجھائیں گے، ان کے ماں باپ ہم سے لڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کا تعاون کریں، ہمدردی کریں، غریبوں کا درد محسوس کریں، بیمار کے ساتھ ہمدردی کریں۔ ایک آدمی بیمار ہے، تڑپ رہا ہے، آج دیکھتے ہیں نا سڑکوں کے اوپر ایک آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تڑپتے رہتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ اس بات کو کہنے لگے ہیں، پولیس بھی اس بات کو توجہ دلاتی ہے کہ آپ پھنسنے کے خطرے سے کسی چیز کو غفلت نہ کیجئے، اس کے ساتھ ہمدردی کیجئے۔ اس لیے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے، پہلی بات تو یہ کہ اسے ہمدردی نہیں ہے، اور ہمدردی کی تو اسے اندیشہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے ہی نہ پھنسا دے کوئی۔ صحیح بات۔ لیکن یہ ہمدردی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے، سماج بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ اپنا کام حرج کر کے اور ایک پریشان آدمی کو لے جا کے ہسپتال پہنچا رہے ہیں، اس کے دواداروں کا انتظام کر رہے ہیں، یہ انسانیت کا تقاضا آپ پورا کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کہیں آپ پھنس جائیں، اس کے نتیجے میں یہ نہ سوچئے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا تو اس میں ہمیں نقصان ہوا، یہ نقصان نہیں ہے۔
یہ انسانیت کی خدمت ہے، سماج کی خدمت ہے، اخلاق کی تکمیل ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں گے تو خود بخود مدد کے لیے ہاتھ بڑھ جائیں گے۔ بالکل۔ اور سب تربیت میں اخلاق بھی آتا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ بھی آتا ہے، بات کرنے کا انداز بھی آتا ہے، بہت ساری سلیقہ مندی کی تمام تر چیزیں اس میں آتی ہیں اور اس سے ہمارے سامنے والا ہم سے متاثر ہوتا ہے۔ نرمی آتی ہے، آپ کے لہجے میں نرمی ہونی چاہیے، بڑے چھوٹے کا احترام اور شفقت ہونی چاہیے، تمام تر چیزیں اسلام نے ہمیں شروع سے ہی اس بات کی تعلیم دی ہے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، اپنے جو قرآن و حدیث کی جو ہمیں روشنی ملتی ہے اس روشنی سے کہیں نہ کہیں محروم ہے۔ تو ہمیں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے اس سلسلے میں ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایات ہیں وہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بزرگوں کے، پرانے بزرگوں کے واقعات، صحابہ اکرام کی زندگی کے حالات، ان کی اعلیٰ اوصاف جو تھے ان کو سمجھنے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم اچھی چیزیں پڑھیں گے، دیکھیں گے تو وہ رفتہ رفتہ وہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق کو ایک عجیب حرکت کرتے ہوئے دیکھا انہوں نے۔ وہ اپنی زبان پکڑ کے اسے اینٹ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان ھذا اورد الموارد، اسی نے مجھے بہت ساری آفتوں میں ڈالا ہے، میری زبان غلط بول دیتی ہے، اس کے نتیجے میں برائی میں پھنس جاتا ہوں۔ ہمارے ہندی کے ایک دوہے میں ایک بات کہی گئی ہے، وہ کہتا ہے کوا کاکے دھن ہڑے کوئل کاکو دے۔ کوا کسی کا نقصان نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں لوٹ رہا ہے، کوئل کسی کو دے نہیں رہی ہے، صرف زبان کی فرق کی وجہ سے۔ کوا کاکے دھن ہڑے کوئل کاکو دے، میٹھی بولی بول کے جگ اپنا کر لے۔ ایک طرف میٹھی زبان ہے، ایک طرف کڑوی زبان ہے۔ ہاں، اس کڑوی زبان کی وجہ سے کوا اگر کہاں کر رہا ہے تو آدمی سوچتا ہے اڑاؤ اسے، بھگاؤ۔ اور کوئل اگر کہیں بول رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں چپ رہو کہیں اڑ نہ جائے، اس کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ تو نرمی سے اور میٹھی زبان سے ہمیں بات کرنی چاہیے مولانا صاحب۔ یہ تو بات ہوئی اخلاق کی، اور اخلاق کی لیکن ایک سوال اور باقی ہے کہ اخلاق بہتر تربیت دینے کا آغاز کس کی ذمہ داری ہے اور کس کو اس کو ہمارے بچے جو ہیں ان کو تربیت کس کو دینا سب سے پہلے ضروری ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بچوں کے والدین ان کو پہلے اپنے اوپر کنٹرول کرنا ہوگا۔ بچوں کو آپ سمجھائیں گے تو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ خود وہ نہ کر رہے ہوں گے جو ان کو کرانا چاہتے ہیں۔ اپنے بول چال میں گالی گلوچ سے بات نہ کریں، سختی سے بات نہ کریں۔ جو بات آرام سے کہی جا سکتی ہے، کیا ضروری ہے کہ ہم سختی سے کہیں؟ آرام سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ جب وہ عملی نمونہ باپ میں اور ماں میں دیکھیں گے، چچا میں دیکھیں گے، دادی دادا میں دیکھیں گے تو وہ یقیناً وہی چیز سیکھیں گے۔ اور اس کے علاوہ پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو ماں باپ کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ بیٹے کس طرح بات کر رہے ہو، بڑے بھائی ہیں ان سے اس طرح بات کرتے ہیں، آپ کی باجی ہیں اس طرح بولتے ہیں ان سے، تو وہ کہے گا سوری۔ یعنی بچپن سے شروع ہوئی تربیت کا سلسلہ اور جوانی میں بھی اس کا سلسلے کو برقرار رکھنا چاہیے۔ تو تربیت کی بات ہوئی۔ مولانا صاحب تعلیم کی ہم بات کرنا چاہیں گے۔ تعلیمی معیار حالانکہ آگے بڑھ رہا ہے لیکن تعلیم دو طرح کی ہے۔ اگر ہم مومن کی تعلیم کی بات کریں تو ایک تو دنیاوی تعلیم ہے، ایک اسلامی تعلیم ہے، دونوں کے بیچ میں توازن کس طریقے سے قائم کرنا ہے؟ دیکھیے بعض حضرات اس کو یوں کہتے ہیں، وہ دنیاوی تعلیم نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں کہ تعلیم کوئی بھی ہو وہ انسان کو شارپنیس دیتی ہے، بہتر بناتی ہے، دھار بناتی ہے، اس کو صحیح راستے پہ چلنا، اس کو سوجھ بوجھ سکھاتی ہے۔ اس لیے دونوں طرح کی تعلیم ضروری ہے۔ ایک وہ تعلیم ہے جو ہماری دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، ایک وہ تعلیم ہے جو ہم نے آخرت بھی بناتی ہے اور دنیا کے اندر اچھا انسان بناتی ہے۔ بے شک جی، جب تک ہم دونوں چیزیں نہیں حاصل کریں گے اس وقت تک ہم مکمل انسان نہیں بن سکتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف تعلیم حاصل کر کے بہت اعلیٰ درجے پہ پہنچ گئے اور ایک طرف چھوٹی سی ضرورت بھی چیز، ہمارے گھر میں کھانا پڑا ہوا ہے، سڑ رہا ہے اور ایک بھوکا دروازے پہ چیختا ہوا چلا گیا، اس کو نہیں دیا ہم نے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعلیم میں تو آپ نے بہت اعلیٰ مقام حاصل کر لیا لیکن اخلاقیات میں آپ بہت نیچے گر گئے ہیں۔ اس لیے اخلاق، انسانیت، شرافت، تربیت یہ بھی ضروری ہے، اور تعلیم جس کے ذریعے آدمی دنیا کو سمجھے گا، حالات کو سمجھے گا، آنے والے وقت کو سمجھے گا، اچھے برے کو سمجھے گا، یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں۔ اس لیے ہمیں نہ تربیت سے غفلت برتنی ہے نہ تعلیم سے غفلت برتنی ہے۔ بالکل غافل نہیں ہونا ہے، نہ تو تربیت سے غافل ہونا ہے، نہ ہی تعلیم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے سے گریز کرنا ہے۔ ہمیں تعلیم بھی حاصل کرنی ہے اور تعلیم میں بھی یہ بھی ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہمیں حاصل کرنی ہے اور اسلامی تعلیم کو بھی ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، اور بچپن سے ہی بچوں کو دونوں طرح کی تعلیم سے ہمیں آراستہ کرنا ہے۔ اور تربیت کی شروعات بھی گھر سے ہوتی ہے، خاص طور پر والدین سے ہوتی ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بہتر تربیت اپنے بچوں کو ہم دیں، تبھی ہم بہتر
बेहतर मुआशरे की तश्कील दे पाएंगे। मौलाना साहब, 2 कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, बात करने का वक्त हो गया है उनसे। बिस्मिल्लाह साहब हैं मुंबई से। बिस्मिल्लाह शेख साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दें बहन आप। जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम बिस्मिल्लाह शेख है। अच्छा, बताएं, पहला सवाल क्या है बहन? पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हमें नमाज पढ़नी होती है और अभी किसी को ऐसी प्रॉब्लम होती है कि उनको इस्तिंजा बार बार होती है, तो कहा जाता है कि इस्तिंजा होगी तो नहा लेना चाहिए। अभी दिन भर में बहुत बार होती है कि इस्तिंजा ऐसा बार बार हो जाती है। कितनी उम्र है आपकी? छींकने पर तो नहाना जरूरी है क्या नमाज पढ़ने से पहले? ठीक है बहन, आपका सवाल। कपड़े बदली करके, ठीक है, आपका सवाल बदले कर नमाज पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। दूसरा सवाल पूछना चाहती हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे अभी हमारे घर में समझो किसी के शौहर नहीं है घर में, और वो औरत अपने बच्चों को पालने या फिर उनके घर में मतलब उनको शादी वादी करने का है, बच्चे लोग के 2-3 बच्चे हैं उनकी शादी करने के, और वो अपने बच्चों को पालने के लिए ऐसा घर वर बेचती है। घर बेचने के लिए थोड़ा पैसा मतलब ऊपर से दोनों पार्टी को मालूम नहीं, थोड़ा पैसा ले लेती है, तो वो काम हराम है क्या? और अगर हराम है तो अगर वो वैसे रिश्तेदार सवाल आप तक पहुंच रहा है चाहिए क्या? यानी बीच वाली औरतें जो रिश्ते बताती हैं, जी, वो पैसे ले सकती हैं यानी। अच्छा, ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हम तक पहुंच गए हैं। और रुबीना साहिबा से और बात करें, हमारी फ़ोन लाइन पर हैं इस वक्त। रुबीना साहिबा, खैर मक़दम आपका, सूरत से हमें फ़ोन कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। बावाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। चाहती हूँ रुबीना। जी बताएं। जी फरमाएं। रुबीना, बिल्कुल रुबीना, आपका सवाल हम जानना चाहते हैं, आपसे हमारी बात हो रही है, आपकी आवाज़ हम सुन रहे हैं। नाम के मानी जानना था। ठीक है, मानी जानना चाहते हैं, बहुत शुक्रिया। और मौलाना से दुआ की दरख्वास्त है कि वो अल्लाह ताला मुझे 5 जना नमाजी बना दे। मौलाना साहब यहीं से अपनी बात का आगाज़ करते हैं। जी देखिए, नमाजी बना देने की बात तो यह है, दुआ करना तो अच्छी बात है। कुरान मजीद में, हदीस में ये दुआएं बताई गई हैं, और ये भी कहा गया अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा, परवरदिगार जो तू पसंद करता है उसकी हमें तौफीक दे। दुआ करना अच्छी चीज़ है, लेकिन दुआ के साथ साथ हमारा उसके लिए चुस्त होना, मजबूत होना, मुस्तैद होना और उसके लिए हरकत में आना ज़रूरी है। जी, फजर की नमाज का वक्त है, हम सो रहे हैं, अल्लाह से दुआ भी कर रहे हैं, अल्लाह में नमाज की तौफीक दे। अरे खड़े हो जाओ, तौफीक मिल जाएगी। तौफीक मिलने की अलामत यही होगी कि तुमने जोर लगाया और खड़े हो गए। जुस्तजू करनी भी ज़रूरी है। जी, और पहले दुआ की दरख्वास्त की है, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए। नाम का भी मतलब रूबीना के माने। देखिए, रूबी जो है असल में अंग्रेजी लफ्ज से रूबी है, उसी में ना लगाकर इसको फारसी की तरकीब बना दी गई है, रूबीना बना दिया। जी, पत्थर के लिए कहा जाता है रूबी पत्थर से। जी चलिए, बहन को अपने दोनों सवालात के जवाब मिल गए हैं। बिस्मिल्लाह साहिबा के सवाल हैं 2 मौलाना साहब। एक तो बेवा के ताल्लुक से जो उनका सवाल है, शौहर नहीं है, बच्चे हैं, रिश्ते के ताल्लुक से, जो रिश्ते के लिए अगर वो कुछ उजरत लेती हैं तो क्या गलत है? बज़ाहिर जहाँ तक हम समझे हैं वो ये बता रही हैं, जो बीच वाली कहलाती हैं वो औरतें, जो किसी के यहाँ बच्ची है, उसने उस पर नज़र डाली, हालात देखे, एक लड़का किसी के यहाँ है, उन्होंने जाके उनकी मुलाकात, रिश्ते कराने का जो काम है, रिश्ता कराने का काम है, उस पर अगर वो कुछ उजरत लेती हैं अपने जाने आने की, तो एक मुनासिब उजरत जो समाज में मुनासिब समझी जाती है, उतना लेने में कोई हर्ज नहीं है। इसलिए कि इस काम के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती है, अपना मेहनताना लेने में कोई हर्ज नहीं है। सही बात है। चलिए, उम्मीद है बहन को पहले सवाल का जवाब मिल गया है। दूसरा सवाल उनका नमाज के ताल्लुक से है, पेशाब के कतरे चले जाते हैं। देखिए, नहाना तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हर बार नहाना ज़रूरी नहीं है। पेशाब के कतरे अगर हो जाते हैं तो ऐसा कर लें वो कि आम दिनों के आम औकात के लिए तो शलवार पहने, जो वही जो नापाक हो गई है, लेकिन नमाज के वक्त शलवार बदल लिया करें बस, और वुज़ू करना काफ़ी है, नहाने की ज़रूरत नहीं है। जी, एक और कॉलर हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं, हिना साहिबा साहिबगंज से, अपने सवाल के साथ। खैर मक़दम आपका हिना साहिबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं हिना, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल है, मेरी चाची है, छोटी वाली चाची, उससे हम लोगों से बात नहीं होती है। उसको हमने ख्वाब में देखा कि वो कुरान शरीफ पढ़ रही, तिलावत कर रही है। और दूसरा सवाल ये, मतलब साबित जानना ये है कि हम ख्वाब में देखे क्या कि 2-3 चांद है, उनमें खाने पे कोई पूरा चांद है, कोई आधा चांद है, सितारे हैं, पूरी रोशनी है, मतलब चांद में, इसकी ताबीर क्या होगी?
جی مولانا صاحب کس طرف اشارے ہیں ان دونوں خواب کے؟ پہلا خواب میں نہیں سمجھ. پہلا خواب یہ دیکھتے ہیں کلام پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنی چاچی کو دیکا ہے، ان چاچی کو دیکھا ہے جن سے تعلق نہیں ہے. جی دیکھیے وہ قرآن مجید پڑھ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر تو نیکی ہے اور آپ کے ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں، تو اچھا یہ ہے کہ آپ ان کے تعلقات ٹھیک کر لیں ان سے، اور چونکہ وہ آپ کی چچی ہیں، آپ چھوٹی ہیں، آپ جا کے ان سے دعا سلام کر لیں اور اپنے تعلقات کو ٹھیک کر لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی پہل کر کے آگے بڑھ کے دعا سلام کر لیتا ہے، تعلقات سنوار کر لیتا ہے، تو وہ اجر و ثواب کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. ایک سوال ان کا باقی ہے خواب کی شکل میں، لیکن اس سے پہلے نازیہ صاحبہ منتظر ہیں وارانسی سے اپنے سوال کے ساتھ، ان کا سوال نوٹ کر لیتے ہیں. خیر مقدم آپ کا نازیہ صاحبہ، سوال پوچھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بتائیں گے نازیہ کیا جاننا چاہتی ہیں؟ کل فون کیا تھا، کل ہم نے نام کا معنی جاننا چاہنا تھا، تو مولانا صاحب نے سالم بتایا تھا، تو سالم کا معنی اور سالم کا معنی جاننا ہے، سمرین کا معنی جاننا ہے. سالم بتایا آپ نے؟ سالم اور سمرین کا معنی جاننا ہے. اور ہماری اپنی نے خواب دیکھا تھا کہ ہماری امی پچھم رنگ منہ کر نماز پڑھ رہی ہیں اور ہماری اپنی سورہ یاسین کا تلاوت کر رہی ہیں. اس کا معنی بتا دیجیے. وہاں سب یہ خواب آپ تک پہنچ رہا ہے. بہن فون لائن پہ بنے رہیے. ایک تو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، دوسرا کیا دیکھا ہے؟ ہماری اپنی نے خواب دیکھا تھا کہ ہماری امی پچھم رنگ منہ کر نماز پڑھ رہی ہیں اور اپنی سورہ یاسین کا تلاوت کر رہی ہیں. جی جی مولانا صاحب، پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، تو صحیح طریقہ ہی ہے. اور والد صاحب تلاوت کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن مبارک ہے، دونوں خواب اچھے ہیں، اچھے خواب ہیں. چلیے ان کا دوسرا سوال کا حصہ یہ ہے کہ سالم اور سمرین کے معنی جاننے چاہے ہیں. نام سالم. سالم سالم جی سالم اگر آپ صحیح بول رہی ہیں سالم ہی ہے، تو سالم کا مطلب ہوتا ہے سین الف لام میم، یعنی سلامتی، محفوظ کے معنی میں. صحیح ہے. صحیح ہے. اور دوسرا انہوں نے سمرین کے معنی جاننا چاہے ہیں. سمرین، سمر تو پھل کو کہتے ہیں جی، اسے سے یا نون لگا کر یہ اس کے معنی ان کے مشابہ کے معنی میں ہو جاتا ہے، پھل جیسا. یعنی یہ نام بھی ٹھیک ہے، بہتر ہے. اگر اس کو سین میم سے پڑھیں تو سامر کہتے ہیں، رات کو بیٹھ کے گفتگو کرنا، رات کو قصہ کہانی کرنا، تو وہ بھی بہت اچھا معنی تو نہیں ہے، لیکن کوئی حرج نہیں. ہینا صاحبہ کا ایک خواب ہمارے پاس ابھی ہے باقی، اور وہ کہتے ہیں خواب میں 2-3 چاند دیکھے ہیں، کوئی آدھا چاند، کوئی مکمل چاند، اس طرح سے. یہ اچھی علامت ہے، اور اس کے سامنے بیٹھ کے بات ہو تو ہم کئی باتیں پوچھیں، یہ ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے. اس کا تو موقع نہیں ہوتا. بس مجموعی بات یہ ہے کہ ستارے جو نظر آتے ہیں وہ اہم شخصیات ہوتی ہیں. جی. اور چاند جو نظر آ رہا ہے مختلف شکلوں میں، ان کے لیے یہ بہتر ہے. چلیے امید ہے ہینا صاحبہ کو بھی اپنے دونوں سوالات کے جواب مل گئے ہیں. مولانا صاحب اخلاق پر ہم ایک مرتبہ پھر آتے ہیں. ہم کئی مرتبہ اخلاق کے ساتھ ہم نے تعلیم کی بات کہی ہے، تو تعلیم کا فقدان ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ تعلیم کا فقدان بہت زیادہ ہے. تعلیم کی طرف ہمارا بالکل بھی زور نہیں ہے، اس پر غور نہیں ہے. زمانے کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ بہتر تعلیم یافتہ آپ ہوں گے تبھی آپ بہتر انسان ہو سکتے ہیں. اور جب بہتر انسان ہو سکتے ہیں تو اس دنیا کو بھی آپ سمجھ پانے میں قابلیت رکھیں گے، اور اس جہاں کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. تعلیم کے سلسلے میں ایک بہت ضروری بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، وقت کم ہوتا ہے. بسا اوقات ہم جب پسماندگی کا شکار ہوتے ہیں، حالات ہمارے کمزور ہوتے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ 10 سال کا ہوا ہے تو بجائے اسکول وغیرہ میں کہیں تعلیم میں ڈالنے کے کسی ہنر کے کسی پیشے میں ڈال دیں، تو 1-2 سال میں کچھ نہ کچھ آمدنی شروع ہو جائے گی. یہ ہمارا جو لالچ ہے کہ ہمیں بچے سے کچھ آمدنی ملنا شروع ہو جائے، یہ ہمیں تعلیم سے روک دیتا ہے. اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ بچہ ہم تنگی سے جھیل لیں گے، پریشانی گزار لیں گے، لیکن بچوں کو تعلیم دلائیں گے. کتنے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم پوری روٹی کھانے کے بجائے آدھی روٹی کھا لیں گے، لیکن تعلیم ضرور دلائیں گے بچوں کو، تاکہ مستقبل سنور جائے، صرف ہمارا نہیں بچوں کا بھی سنور جائے اور نسلوں کا سنور جائے. میرا ماننا بھی یہی ہے کہ آپ تنگ حالی سے اگر آپ رہ رہے ہیں تو آپ تنگی ترشی جو بھی ہے برداشت کر لیجئے. ایک روٹی کھاتے ہیں آدھی کھا لیجئے، چکنی کھاتے ہیں روکھی کھا لیجئے، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف ضرور دلائیے. اس سے آپ کا بھی آپ کی زندگی کے آخر وقت تک یہ بچے کچھ دینے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور نہ بھی ہوئے تو کم از کم اپنے لائق ہو جائیں گے. صحیح بات. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. اور یہاں تعلیم سے تو اگر جب آنکھیں کھلتی ہیں تو والدین کا بھی نام روشن ہوتا ہے. اگر بچہ قابل بنتا ہے تو والدین کا بھی نام روشن ہوتا ہے. 2 کالر ہیں. عبدالجبار صاحب ہیں کرناٹک سے اپنے سوال کے ساتھ، اور اس کے بعد مسکان صاحبہ سے ہم بات کریں گے. عبدالجبار صاحب خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیے.
जब्बार जी फरमाएं जब्बार साहब। हाँ देखिए, मैं अब्दुल जब्बार बागलकोट से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मैं आपने देखा हूँ एक बहुत बड़ी पानी नदी हो रही, उसमें मैं छलांग मारा हूँ। नदी में छलांग लगा रहे हैं? हाँ जी। और क्या है, और दूसरा वही खाब के दौरान हमारे बोर में पानी कम है, लेकिन मैं दोबारा उसमें बहुत बड़ा पानी शुरू हो गया। क्या ऐसा ताजुब हुआ, बोलकर बोला इतने में इतना ख्वाब की ताबीर हो गया। ठीक है, आपका ख्वाब हमने नोट कर लिया है। मुस्कान साहिबा खैर मकदम, आपका सवाल पूछें। मुस्कान साहिबा दिल्ली से हमारे साथ हैं हमारी फ़ोन लाइन पर, फरमाइए क्या सवाल है। ग़ालिबन मुस्कान साहिबा से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। मौलाना साहब अब्दुल जब्बार साहब का जो ख्वाब है उसकी ताबीर क्या हो सकती है? पानी में छलांग लगा रहे हैं जी। उससे आगे क्या कहा उन्होंने? और उसके बाद ये है कि वो ये बताते हैं कि उनका जो बोर है उनमें कम पानी होता था, बढ़ गया है, लेकिन इसकी ताबीर के लिए कुछ लम्हों का इंतजार करना होगा। राशिदा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुंबई से सवाल पूछना चाहती हैं राशिदा साहिबा, आपका खैर मकदम, सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैर मकदम आपका राशिदा साहिबा, सवाल पूछें। मेरे दो सवाल हैं, फरमाएं। हाँ, पहला सवाल, मेरी नवासी का नाम सारिश है, उसके मायने जानने हैं। नाम दोहरा दीजिए आराम से। सारिश। सारिश जी। सारिश समझ आ रहा है। अगर ये सारिश अगर है तो रिश्तेदारी में जैसे किसी के घर में हम जानते हैं कि उनके घर हराम कमाई आ रही है और उनके घर के हमारा आना जाना या उनसे रास्ता रखना सही है? ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं और यहीं से अपनी बात का आगाज करते हैं मौलाना साहब जी। देखिए, नाम तो हम समझ नहीं पाए जी जी, और ये जो दूसरा सवाल है इनका, बहुत वाज़ेह तौर पर समझ लीजिए कि किसी की रू रियायत, किसी के ताल्लुकात का लिहाज जो है अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में कोई अहमियत नहीं रखता। बेशक। इसलिए जिसकी कमाई को हम समझते हैं गलत है, या तो उनसे वास्ता न रखिए, और अगर रखिए तो इतना रखिए कि मिलेंगे जुलेंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ला ताकुल इल्ला ताम तकीन वला याकुल ताम का इल्ला तकीन, न तो तुम गैर मुत्तकी के यहाँ का खाना खाओ, न तुम्हारा खाना कोई गैर मुत्तकी खाए। यानी खाने और खिलाने का ताल्लुक जो है मुत्तकी, परहेजगार और जिनकी रोजी पाक साफ हो उनसे रखिए। इसलिए आना जाना रख सकते हैं, लेकिन खाने पीने से माजरत कर दिया कीजिए। अगर इतने से न चल सके तो वास्ता खत्म कर दीजिए। अल्लाह को नाराज करना ज्यादा बुरा है किसी इंसान को नाराज करने के मुकाबले में। सही बात है, हराम रोजी से हमें वैसे भी गुरेज करना चाहिए। अगर निभा सकते हैं तो अच्छा है, किसी इंसान का दिल न दुखे, लेकिन अगर वो इसरार करे तो फिर कहिए कि ये इसमें मजबूरी है, इसके लिए इसरार न कीजिए। दो कॉलर हमारे साथ हैं, फ़हीम साहब हैं और इसके साथ साथ रानी साहिबा है हमारी फ़ोन लाइन पर, बनारस से रानी साहिबा से हम पहले बात करेंगे। खैर मक़दम आपका रानी साहिबा, सवाल पूछें। हेलो जी रानी साहिबा फरमाएं, क्या सवाल है? जी हमारा सवाल है, ये ख्वाब के बारे में। दो ख्वाब है कि हमारी बड़ी वाली अपी देखी थी, उनकी शादी हो गई है, कि जैसे कि उनके आगे चूड़ी बहुत सारा टूटा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि हमारी छोटी बहन है, वो ख्वाब देखी थी कि हमारी शादी हो रही है और हमें बड़ी बहन तैयार कर रही है। ठीक है। फ़हीम साहब आपका खैर मक़दम, सवाल पूछें। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन हमारी आपसे मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि रमजान का महीना चल गया था। बहुत आपको देखना चाहते थे, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। हाँ, हमारी खाला है, तारा खाला, जो हल्द्वानी रहती, हज को जा चुकी है। वो आर्टिफिशियल चूड़ी वहाँ से लाई थी मदीना शरीफ से, तो वो उनसे कहा किसी ने कि पहनने में नमाज नहीं होगी। अच्छा, वो उनको मदीना शरीफ से लाई है, तो इस वजह से वो चूड़ी जो है पैर नहीं उतारना चाहती है। तो उन्होंने पूछा था कि मतलब हमारी नमाज हो जाएगी या नहीं। हालांकि मौलाना अब्दुल कारी साहब ने इस सवाल को करा था, अभी परसों ही कहा था, मतलब अंगूठी के बारे में कहा था, लेकिन वो चूड़ी पहने हुए हैं, तो उसके बारे में पूछना था कि मतलब वो नहीं उतारना चाह रही। तो उन्होंने कहा था मौलाना अब्दुल कारी साहब से पूछ लेना। फ़हीम साहब रहती है वो। बिल्कुल फ़हीम साहब, आपकी बात पूरी समझ में आ गई है। एक ख्वाब है मेरी सर, मेरी ख्वाब ये है कि मैंने देखा कि अभी तहकीक के घंटे मतलब मैं उठता हूँ तक से मैंने देखा एक सांप बहुत तेजी से जो मतलब चलता है, वो सांप मेरे आगे आगे जा रहा है। जब मैं उसे पकड़ने का दौड़ा तो एकदम आगे जाके गायब हो गया। क्या 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 जा रहा है? सांप दौड़ रहा है। सांप दौड़ रहा है।
सांप बहुत तेजी से सांप चलता है, वो आगे जाके मतलब गायब हो गया जब मैं उसे पकड़ने भागा हूँ। बहुत शुक्रिया फ़हीम साहब, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं और बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ज़िंदगी रखी तो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात भी आपसे ज़रूर होगी। मौलाना साहब, ये जो ख्वाब है, ये ख्वाब इनका किस तरफ इशारा करता है? देखिए, ये डर नहीं रहे हैं उससे और सांप आगे जा रहा है और वो फिर गायब हो गया। ये दौलत है जिसके लिए कोशिश में है। ये किसी काम की, किसी तरक्की के, किसी काम के लिए, पैसे के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, उसमें अभी कामयाबी नहीं मिल रही है। कोशिश करें, दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला कामयाबी देगा इंशाअल्लाह ताला। पहला जो सवाल है इनका आर्टिफिशियल, मुझे भी याद आ गया, हमने सवाल का जवाब दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों फिर वो दोबारा पूछने की जरूरत। उन्होंने कहा कि अंगूठी के बारे में सिर्फ बताया था, लेकिन अंगूठी हो चाहे चूड़ी हो या कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, वो पहनना तो सिवाय सोने चांदी के ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई पहनकर नमाज पढ़ रहा है तो नमाज हो जाएगी। इसमें बात बता चुके हैं, तो एक सवाल को दोबारा करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा उनके दिल में शक था कि सिर्फ अंगूठी के बारे में तो ऐसी बात नहीं है, तो तमाम जेवरात हो, कुछ और गले का हो, कान का कुछ भी हो, वो लोहे का हो, तांबे पीतल का हो और किसी चीज का हो, तो वो पहनना ठीक नहीं है, लेकिन पहनकर अगर नमाज पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया। उम्मीद है फ़हीम साहब को अपने दोनों सवाल के जवाब मिल गए हैं। रानी साहिबा के जो ख्वाब हैं, एक ख्वाब में उन्होंने कहा कि चूड़ी जो है वो टूटी हुई उन्होंने देखी है। देखिए, चूड़ी हमारे यहाँ, हमारे समाज में सुहाग की निशानी है जी। वो टूटना अच्छी अलामत नहीं है। अल्लाह ताला से नमाज पनाह पढ़कर दुआ कर लीजिए और कुछ न कुछ सदका ज़रूर कर दीजिए, जो ज़रा बड़ी मिक़दार में सदका कर दीजिए। अल्लाह ताला खैर आफियत रखे इंशाअल्लाह ताला। शादी होते हुए देख रही हैं, दूसरा ख्वाब ये अच्छी बात है। इनकी बड़ी बहन इनको तैयार कर रही हैं। अल्लाह ताला खैर आफियत से इनकी शादी हो, अच्छी जगह रहें और सुकून की ज़िंदगी गुजरे, हम भी दुआ करते हैं। आमीन। अब्दुल जब्बार साहब का कर्नाटक से हमारे पास ख्वाब की शक्ल में जो सवाल है वो ये है कि नदी में छलांग लगा रहे हैं। नदी में छलांग लगाना अच्छी बात है, और उसके बाद भी उन्होंने कुछ कहा जो हम समझ नहीं सके, लेकिन बहरहाल पानी के अंदर जा रहे हैं, गुस्ल करेंगे, नहाएंगे, अच्छी अलामत है। और उसके बाद क्या हुआ हम नहीं समझे, अल्लाह ताला उसको भी बेहतर करे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, आयशा साहिबा दिल्ली से सवाल पूछना चाहती हैं। आयशा साहिबा, खैर मक़दम आपका। आयशा साहिबा सवाल पूछें। जी, वालेकुम अस्सलाम, बताएं आयशा। जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि मेरे बच्चों की ना सरकारी जॉब की बात चल रही है, तो मौलाना साहब से दुआओं की दरख्वास्त है, अगर मुनासिब हो तो अल्लाह ताला वो जॉब बनवा दे हमारी। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे दो ख्वाब हैं। मुझे शादियाँ बहुत दिख रही हैं, फंक्शन शादी बहुत दिख रही हैं। आपकी शादी हो गई है? जी, आपकी शादी हो चुकी है? जी हाँ, मेरी शादी तो बहुत, मेरे बच्चे माशाल्लाह जवान हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जी, मेरी शादी हो चुकी है, माशाल्लाह बच्चे जवान हैं। ठीक है, आगे बताएं इस ख्वाब का हिस्सा। जी, और आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, उसके बाद ही बात हो पाएगी। और मैंने ख्वाब देखा था कि हमारे पड़ोस में जी, हमारे पड़ोस में शादियाँ, कोई फंक्शन है और वो शामियाना लगा रहे हैं, तो वो वाइट शामियाना है पूरा और हमारे छत तक आ गया है, वो हमारी छत पे भी लग गया है। ठीक है बहन, आपके दोनों ख्वाब हमने नोट कर लिए हैं और जॉब के ताल्लुक से भी आपका सवाल है वो भी हमने नोट कर लिया है। मुसब अहमद साहब हमारी फ़ोन लाइन पर हैं, जामिया नगर से सवाल पूछना चाहते हैं। फरमाइए, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हमको दो सवाल पूछना था। एक है कि हमने ख्वाब देखा कि हम कचौचा शरीफ गए हुए हैं और वहाँ जो दरिया है उससे हम जा रहे हैं, तो उससे 10 का नोट मेरे हाथ में आ रहा है। उसके बाद हम जब मजार पर पहुँचते हैं तो वहाँ देखते हैं कि लैट्रिन हो गया है, पूरा लैट्रिन का पैर में भी लग गया। जब हम घर आते हैं तो फिर हमारा जो हम जिस रूम में होटल में ठहरे हुए हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कोई खटखटाया। हमने जब दरवाजा खोला तो उसने बोला कि आपके लिए खाना है। तो हम बोला कि हम तो ऑर्डर ही नहीं किए, खाना कैसे दे दिया? तो हमको फिर ये हमाद हो रहा है, समझ में आ रहा है कि अशरफ जहां की समनानी रहमतुल्लाह की तरफ से लगता खाना हमको भेजा गया है। एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है हमको कि हमारी वाइफ जो है देखिए किसी रिलेटिव को मतलब कि प्रेग्नेंट है, इसका भी हमको थोड़ा सा बता दीजिएगा। दो सवाल है। मां सभी दोनों ख्वाब की शक्ल में सवाल हैं जी। पहला तो मैं समझ सका, दूसरा नहीं समझ में आया। दूसरा प्रेग्नेंट लेडी को उन्होंने देखा है जी, हामिला को ख्वाब में जी जी। दूसरा ख्वाब जो प्रेग्नेंट देखा है, ये तो अच्छी अलामत है, अल्लाह ताला बेहतर करे। और पहले ख्वाब में जो देख रहे हैं किसी बुजुर्ग के यहाँ जा रहे हैं और वहाँ गंदगी है, ये मैं समझता हूँ खुदा न खास्ता ये कुछ आदाब की रियायत में इनसे कुछ कोताही हो रही है। वहाँ पर तो गंदगी होने का सवाल नहीं है, असल कोताही शायद इनकी तरफ से अकीदत, मोहब्बत और उसके आदाब की रियायत में कुछ कमी हो रही है।
ये तौबा इस्तिग़फ़ार करके अगर कहीं हाज़िरी देने का इरादा है तो हाज़िरी दें, लेकिन अदब एहतराम के साथ जाएं, वरना दूर से ही इशारे सवाब कर दें। चलिए, उम्मीद है मुसब साहब तक भी सवाल के जवाब पहुंच गए। मां साहब, आयशा साहिबा का जो एक तो जॉब के लिए दुआ की दरख्वास्त उन्होंने की है, और उनके लिए भी कोई दुआ बता दें कि किस दुआ का एहतमाम उनको करना चाहिए। देखिए, एक तो कुछ सदका ज़रूर निकाल दें, ख़ास इस मकसद से कि परवरदिगार जॉब के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं इसमें हमें कामयाबी मिले और हमारे लिए वो खैर हो, और उसके लिए नमाज हाजत पढ़ें। आपका मामला हो या आपके घर के किसी का हो, आप भी और वो भी उनके लिए नमाज हाजत पढ़ें, दुआ करें। या कादियल हाजात, फजर की नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद कम से कम 101 मरतबा पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह ताला नौकरी उनको मिल जाएगी। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला कामयाबी दे। इनका दूसरा सवाल है, ख्वाब में शादी होते देख रही हैं का? शादी होना कभी कभी खुदा न खास्त का एक मतलब कुछ और भी होता है। आप दुआ कीजिए कि यह शादी जो है वाकई शादी और खुशी के माना में अल्लाह ताला इनको अता फरमाए। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको खुशियाँ हासिल करें। अगर कोई मुज़िर असरात की बात हो तो मौलाना साहब कोई दुआ वगैरह इनको मशवरा दें? मुज़िर असरात के लिए नमाज पनाह पढ़ लें, कुछ सदका कर दें। जो दूसरा मफहूम भी जो होता है इसका, वो दूसरा मफहूम टल जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा ख्वाब है इनका, पड़ोस में कोई फंक्शन होता हुआ देख रही हैं और उसमें जो सफ़ेद शामियाना है वो इनके घर तक आ रहा है। ये इंशाअल्लाह बेहतर है। कोई तकरीब हो रही है, उसमें पड़ोस की खुशियाँ हैं, फिर भी इंशाअल्लाह आपको भी खुशियाँ हासिल होंगी। यानी हर ख्वाब कुछ कहता है, हर ख्वाब को हमें बारीकी से पैगाम होता है, मैसेज होता है जी। वो खामोश मैसेज होते हैं। कुछ तो कभी कभी ख्वाब में साफ साफ बात बताई जाती है जी। और कभी उसके ख्वाब के कुछ कोड वर्ड होते हैं जिसको ताबीर कहते हैं। उसमें जब कभी हम महसूस करें कि वो ख्वाब अच्छा नहीं है तो अल्लाह ताला से उसके लिए पनाह मांगें, कुछ सदका निकाल दें तो उसके खतरात टल जाते हैं। मां साहब, दो कॉलर हैं हमारे साथ, सायरा साहिबा हैं और यास्मीन साहिबा हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। यास्मीन साहिबा, बताएं क्या सवाल है, क्या जानना चाहती हैं? यास्मीन साहिबा, खैर मख्तम, आपका सवाल पूछें। हेलो, ग़ालिबन यास्मीन साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर नहीं हैं। सायरा साहिबा से बात करेंगे। सायरा साहिबा, खैर मख्तम, आपका सवाल पूछें। हेलो, सायरा साहिबा हमारी फ़ोन लाइन पर अगर मौजूद हैं तो सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा साहिबा से बात हो रही है? जी जी, मैं बोल रही हूँ। हाँ, मैं चंदौसी से बोल रही हूँ। बताएं बहन। सर, मेरी बहुत तबीयत खराब रहती है, पता ना क्या बात है। कभी मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज में दर्द हो रहा है, सब कभी टांगों में दर्द होता है, कभी सिर में दर्द होता है, कभी जगह जगह दर्द होता है, वही दर्द सही हो जाता है अपना, वही पता ना क्या बात है। और दूसरा ये है कि मेरी बेटियों के रिश्ते आते हैं, रुकते नहीं है मुकम्मल। जैसे हम रिश्ता चाह रहे हैं वैसा रिश्ता नहीं मिलता, बहुत परेशान है। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। बहन, आपकी दोनों बातें हमने सुन ली हैं। मौलाना साहब से हम बात का सिलसिला जोड़ते हैं और आपके सिलसिले में उनका मशवरा हम लेते हैं। कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। तो मौलाना साहब, रिश्तों के ताल्लुक से ये बात सही उतरती है? रिश्तों के मामले में भी है और ज़िंदगी के हर मामले में ऐसे ही है जी। सबसे कामयाब इंसान वो है जो गमों को बर्दाश्त करना और टाल जाना सीख जाए जी जी जी। इसलिए जो परेशानियां हैं, रिश्तों में कमी है, एक तो अपनी तरफ से ज्यादा शर्तें न लगाइए। हम जब ज्यादा शर्तें लगाते हैं, ऐसा हो वैसा हो वैसा हो, जितनी ज्यादा शर्तें बढ़ाएंगे उतनी वो चीज कम होनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज भी करना चाहिए। हाँ, समझौता करना पड़ता है, तो वो कर लीजिए, रिश्ते इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। और जो आपने अपने जिस्म की बीमारी की शिकायत की है जी। अच्छा यह है कि एक तो खाने पीने में थोड़ी सी एहतियात कर लीजिए। कम खाना आदमी को बहुत मुफीद होता है। हदीस शरीफ की जो तालीम है, जो सहाबा किराम की पूरी ज़िंदगी रही है, उसमें वो हमेशा भूख लगने पर खाते थे और थोड़ी सी भूख रखकर खाना छोड़ दिया करते थे। ये करके देख लें, और जो कुछ भी खाएं पिएं वो उस पर सूरह फातिहा पढ़ के दम करके खाया करें इंशाअल्लाह ताला। ये दो एहतियातें कर लें, खाने की मिक़दार घटा दें और जो कुछ भी खाएं वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएं, अलम शरीफ पढ़ के दम करके खाएं, इंशाअल्लाह ताला इनके जिस्म की हालत ठीक हो जाएगी। मौसम, इनकी बेटियों के रिश्ते बेहतर जगह हो जाएं, इनके लिए कोई वजीफ़ा या कोई दुआ? कोई नमाज हाजत पढ़ें और नमाज तौबा पढ़ें। कभी कभी हमारी बाज़ कोताहियों के नतीजे में हमारे राहों में रुकावटें हो जाती हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगेंगे तो वो रुकावटें इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। उसके अलावा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा 93 नंबर की सूरत है कुरान मजीद की। इशा की नमाज के फ़र्ज़ों का सलाम फेरने के बाद ये भी पढ़ें और इनकी बच्चियाँ भी पढ़ें।
21 मरतबा इंशाअल्लाह ताला अच्छे रिश्ते आएंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए इसाक साहब से बात करते हैं, हमारी फ़ोन लाइन पर आ चुके हैं। इसाक साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें, क्या जानना चाहते हैं? इसाक साहब खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। हेलो जी फरमाएं, खैर मक़दम आपका। अस्सलाम वालेकुम, मैं इसाक बोल रहा हूँ बम्बई से। जी जी वालेकुम अस्सलाम इसाक साहब। हाँ, एक्चुअली मेरे रिजल्ट में थोड़ा तंगी हो रही है। 7 साल से है ना, मेरा काम चला गया और मैं काफी कुछ चीजें ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन उसमें ये नहीं हो रहा है, मतलब सक्सेस नहीं मिल रहा है, कामयाबी नहीं मिल पा रही है। कब कब मुझे ऐसा जहन में आता है कि किसी ने कुछ किया है क्या, ऐसे किया है, तो क्या सही है क्या गलत है, मैं इस बार समझ नहीं पा रहा हूँ। तो आप मुझे थोड़ा मशवरा दीजिए। मौलाना साहब से रहनुमाई हासिल करेंगे और तफसीली रहनुमाई आपके ताल्लुक़ से हम हासिल करेंगे, लेकिन उससे पहले बहन रेहाना से हम बात कर लेते हैं। कर्नाटक से सवाल पूछना चाहती हैं रेहाना साहिबा, खैर मक़दम आपका। रेहाना साहिबा मौजूद है हमारी फ़ोन लाइन पर, तो सवाल पूछें। गालिबन रेहाना साहिबा से हमारा राब्ता नहीं रहा है। मौलाना साहब, इसाक साहब परेशान है। देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जो हमसे पहले भी हम कई मरतबा सुना चुके हैं जी। आप ये फरमाते हैं, इन्नर रजुला ला युहरमु रिज़्क़ बिज़्ज़म्बि युसीबुहु। जी। आदमी कभी कभी अपने किसी गुनाह के नतीजे में जो उससे हो गया था, रोज़ी से महरूम कर दिया जाता है। तो जब कभी रोज़ी की तंगी हो या किसी मामले में हमें परेशानी हो, नाकामी हो, तो बजाय इसके कि हम दुनिया भर पे इल्ज़ाम दें, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने जादू कर दिया, सिफली कर दिया, उसने नज़र लगा दी, इसके बजाय हम अपने बारे में गौर करें कि हमसे कोई ऐसी कोताही तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से खुदा पाक नहीं ताला लगा दिया हो। जी, अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। इसलिए नमाज तौबा बार बार पढ़िए और नज़र डालिए। और वो जो आपने कहा कि किसी ने कुछ करा दिया हो, अगर ऐसा खुदा न खास्ता है भी, तो शैतानी असरात को दूर करने के लिए सूरह बकरा बेहतरीन चीज़ है। आप कम अज़ कम 1 हफ्ते लगातार सूरह बकरा पूरी सूरत रोज़ाना पढ़ सकें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपके पढ़ने की रफ्तार बहुत सुस्त है तो आधी आज आधी कल इस तरह से 7 मरतबा सूरह बकरा पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर ऐसे कुछ असरात हैं तो वो दूर हो जाएंगे। आयतुल कुर्सी पढ़ने का मामूल रखिए सुबह शाम। वहाँ सब 2 कॉलर हैं, इमराना साहिबा हैं मुजफ्फरनगर से, और उसके बाद हम नायाब से बात करेंगे जो कि कर्नाटक से सवाल पूछेंगे। इमराना साहिबा, पहले आप अपना सवाल हम तक पहुँचा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताएं इमराना जी, हमारे लिए दुआ करें मौलाना साहब से। जरूर दुआ करेंगे अल्लाह इंशाअल्लाह ताला। कोई खास दुआ कराना चाहती हैं? जी, हमारी लड़की का कुछ छोटा सा वो होने वाला, खुशी होने वाली है, उसके लिए दुआ कराएं। बेटी की खुशी होने वाली है कोई? अल्लाह ताला जी जी, बहुत फिक्र लग रही है इसकी। ठीक है, जरूर दुआ करेंगे। ठीक है। इमराना साहिबा ने बहुत मुख्तसर में अपनी बात कह दी है। नायाब साहब से और जान लेते हैं उनका सवाल क्या है। नायाब साहब कर्नाटक से फ़ोन कर रहे हैं, खैर मक़दम आपका। नायाब साहब हमारी फ़ोन लाइन पर। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाएं नायाब साहब। मेरा नाम नवाज खान है साहब। नवाज खान साहब है, फरमाएं नवाज साहब, क्या जानना चाहते हैं? जी, हमें बहुत तकलीफ उठाते जा रही हैं। 4 दिन आसान होता है, 4 दिन तकलीफ हो रही है। तकलीफ किस तरह की है नवाज साहब? ये धंधे में भी कमाया नहीं, क्या भी बहुत खर्च से बहुत प्रॉब्लम तकलीफ आ रही है। मौलाना साहब, तकालीफ हैं और ख़ास तौर पर उन्होंने कारोबारी तकलीफ की बात। कारोबारी सिलसिले में कई बातें हम बता चुके हैं, अगर ये सुन रहे होंगे तो इन्होंने भी वो सारी चीज़ें सुन ली होंगी। उसके अलावा आज जुमे का दिन है, अच्छा ये है कि ये सलातुल तस्बीह पढ़ें। आज तो पढ़ें, और जुमा ही ज़रूरी नहीं है और दोपहर का वक्त ही ज़रूरी नहीं है, जिस वक्त भी मौका हो सलातुल तस्बीह पढ़ें। ये कम से कम 3 मरतबा, 3-4 दिन में 5 दिन के अंदर अंदर 3 मरतबा सलातुल तस्बीह पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने हालात के लिए, बेहतरी के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। सलातुल तस्बीह तो बहुत अहम नमाज है। अगर नफिल नमाजों की बात करें तो उसका रोज़ाना एहतमाम करना चाहिए। रोज़ाना नहीं कर पाए, रोज़ाना कर लें। मैं तो इन्हें बता रहा हूँ कम से कम 3 दिन या 5 दिन ही कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे असरात उसके
इनके सामने आएंगे। और भी जितने हमारे नाजरीन हैं जी जी अपने हर मकसद के लिए पढ़ सकते हैं। और ये बहुत आला दर्जे की नमाज तौबा भी है और बहुत आला दर्जे की नमाज हाजत भी है। बेशक इसका एहतमाम रोज़ न कर पाएँ तो हफ्ते में करें। आम तौर पर जैसे नायब साहब की बात अलग है, नवाज साहब को जो आपने मशवरा दिया है उनके लिए तो आपने ख़ास तौर पर कहा है कि 3 मरतबा और लोग भी इसका एहतमाम करेंगे तो बहुत मुफीद होगा। जी, हफ्ते में कर लें, महीने में 1 हुज़ूर मरतबा अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अपने चचा हजरत अब्बास को ये तालीम दी थी कि रोज़ाना पढ़ें। रोज़ाना ना हो सके तो हफ्ते में 1 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा ना हो तो महीने में 1 मरतबा, इस तरह से यानी लाजिमन इसको पढ़ना चाहिए जितनी गुंजाइश हो। हद ये है कि साल में 1 मरतबा पढ़ लीजिए, और आखिरी हद ये है कि ज़िंदगी में 1 मरतबा ज़रूरी पढ़ ली जाए। लेकिन इतना बड़ा मसला नहीं है कि साल भर में या ज़िंदगी में 1 ही मरतबा हो। बहुत से बहुत पढ़ता रहे आदमी तो 20-25 मिनट में अदा हो जाती है। और जो आराम से सुस्त रफ्तारी से ही पढ़ेंगे तब भी आधे घंटे में आराम से पढ़ के फारिग हो जाएंगे। एक अपना मामूल बना लें, एक तरीक़ा बना लें तो तमाम नफिल इबादत भी बहुत सलीक़े से, बहुत अच्छे तरीक़े से हो जाती हैं। और आप टाइम को भी मैनेज कर लेते हैं, आपका जो दुनियावी काम है वो भी आप कर पाते हैं और दूसरी जो इबादत हैं उनके लिए भी आप अपना वक्त निकाल पाते हैं। ये तमाम तर चीज़ें, तो इबादत की तरफ भी हमें ख्याल करने की ज़रूरत है। अल्लाह की तरफ हम तवज्जो करते हैं, दुनिया भर में ढूंढते फिरते हैं, हम फलां के पास जा रहे हैं, उससे कोशिश कर रहे हैं, उससे कोशिश कर रहे हैं, जिसके हाथ में सब कुछ है उससे क्यों ना कहें। जी बेशक। 2 कॉलर आ गए हैं, उनसे हम बात करते हैं। रज़िया साहिबा हैं और असद खान साहब हैं। रज़िया बहन, आपका खैर मक़दम, सवाल पूछें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ बुलंद अपनी बात हम तक पहुंचा दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, बताएं। मौलाना साहब से तो मुझे अपने नाम के मायने पूछना है। रज़िया नहीं है, राज़िया। राज़िया, ठीक है। और राज़िया नाम है मेरा, नाम के मायने। और एक मेरी तबीयत खराब रहती है, हर वक्त तबीयत खराब रहती है। ठीक है बहन, आपके दोनों सवाल हमने नोट कर लिए हैं। असद साहब से और बात कर लेते हैं। असद साहब, खैर मक़दम, आपका सवाल पूछें। हेलो जी असद साहब, राह नजात में आपका खैर मक़दम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बताएं असद साहब। हजरत, मैं अपने नाम और अपने बच्चों के नाम के मायने पूछना चाहता हूँ। आपका तो नाम आ गया असद, इसका बच्चों का। मेरे बड़े बेटे का नाम है मोहम्मद हुसैब खान। हुसैब या हुसैब? उससे छोटे बेटे का नाम है मोहम्मद जुनैद खान। जुनैद समझ में आ गया। पहला नाम बताएं बड़े बेटे का। मोहम्मद जुनैद आ गया। हाँ, और मोहम्मद जैद आ गया। और मोहम्मद हुसैब। ये समझ आ रहा है हुसैब या हुजैब? मोहम्मद हुजैफ कह रहे हैं, हुजैफ। मौलाना साहब, इस तरह से पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस तरह से बच्चों के हमने नाम रख दिए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं, उसके बाद मशवरा करना कितना मुनासिब है? असल में बात यह है कि अल्लाह के करम से इस प्रोग्राम के नतीजे में जी, या दूसरे हजरात भी कोशिश कर रहे हैं, उसके नतीजे में एक बेदारी पैदा हुई है, जागरूक पैदा हुई है। जी जी। तो अब लोग महसूस कर रहे हैं कि नाम जो है वो भी बामाना होना चाहिए। तो अब उम्मीद है कि आइंदा जब नाम रखेंगे लोग तो इन तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। हुज़ैब या हुज़ैफ जो है ये नाम सही नहीं है। हुज़ैफा एक मशहूर सहाबी हैं, हज़रत हुज़ैफा। अगर ये वो नाम रखें हा दाल या फा हा, हुज़ैफा। और दूसरा नाम जुनैद, ये भी ठीक है, बहुत बड़े बुजुर्ग का नाम है। और तीसरा नाम जैद, मोहम्मद जैद है, मोहम्मद जैद, वो भी एक सहाबी का नाम है। और एक वाहिद सहाबी हैं जिनका नाम कुरान मजीद में आया है, वो हजरत जैद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी मोहम्मद जैद नाम मुनासिब है, मोहम्मद जुनैद ठीक है। और हुज़ैफ जो है, हुज़ैफ की बजाय हुज़ैफा होना चाहिए। आपका मशवरा ये है कि हुज़ैफा होना चाहिए। अच्छा, असद के मानी भी उन्होंने, असद जो है वो शेर को कहते हैं। अगर इसको हम असद कहें, अलिफ सीन ऐन दाल, तो असद के माने बहुत सआदतमंद, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा। वरना मिर्जा गालिब का जो एक लक़ब उनका एक तखल्लुस असद भी होता था। असद से क्या तवक्को बज़माने जवानी, कभी कौज़ हकीम जिसने न सुनी मेरी कहानी, तो वहाँ उन्होंने असद इस्तेमाल किया है। तो गालिब के अलावा एक तखल्लुस वो असद भी करते थे, लेकिन उनका असदुल्लाह वो नाम से उन्होंने लिया है। असद के माना शेर के होते, शेर के हुआ करते हैं। तो अब आपका मशवरा है कि अगर ये कर पाएं तो असद कर लें, असद कर लें, लेकिन असद भी करें तो कोई हरज नहीं। बहुत मुख्तसर में राज़िया साहिबा के 2 सवाल हैं। एक तो तबीयत ख़राब रहती है, दूसरा राज़िया के माना राज़िया जैसे रज़िया है जी, उसी से राज़िया का मतलब राज़ी, खुश, राज़ी, वही माना में है जैसे उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और तबीयत ख़राब रहने वाली बात हमने अभी बताई है कि खाने पीने पे कंट्रोल करें, कम खाएं और थोड़ी सी भूख रोक कर खाना रोक दें और खाने पीने पे सूरह फातिहा और बिस्मिल्लाह पढ़ के
जब खाया करें इंशाअल्लाह सेहत भी ठीक रहेगी, खाना भी हजम होगा। सही बात है। और नमाज़ों का एहतमाम करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, नफिल नमाज़ पढ़ें साथ में, तो और अच्छा रहेगा। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आज का मौजू बहुत अहम था, तालीम और तरबियत। उस पर आपकी बहुत बेशकीमत जो राय थी, मशवरे थे, कुरान और हदीस की रोशनी में जो आपकी रहनुमाई थी वो हमारे तमाम नाज़रीन तक पहुँची है। अब चूँकि रुख़्सत का वक्त है अपने नाज़रीन से, तो चलते चलते इतना ही कहना चाहता हूँ कि तालीम और तरबियत दोनों पर हमें ज़ोर देना है। बच्चों को बाखलाक बनाना है, हुनरमंद बनाना है, बाअदब बनाना है, और साथ में तालीम से आरास्ता करना है। तालीम एक तरह से ज़ेवर है, और उस ज़ेवर से हमें अपने बच्चों को सजाना है ताकि उनका मुस्तक़बिल ताबनाक हो, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी वो बेहतरी का सामान बने हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम नाज़रीन का हम अदा करेंगे और रुख़्सत की इजाज़त चाहेंगे। राह नजात से इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, लेकिन आप कहीं ना जाएँ, लगातार देखते रहें जी सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।